آداب عرض ہے MCN اردو خبرنامے میں میں ذکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، پیش ہیں آج کی اہم خبریں۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ مین پائپ لائن اور فیڈر لائن پر سے لیے گئے غیر قانونی نل کنیکشن منقطع کرنے کی مہم شہر میں جاری۔ چکل تھانہ علاقے میں آج کی گئی کارروائی اور توڑے گئے 66 کنیکشن۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت اب تک کیے گئے ترقیاتی کاموں کا AMC انتظامیہ کرے وائٹ پیپر جاری۔ عام آدمی پارٹی کا میونسپل ایڈمنسٹریٹر سے مطالبہ، میمورنڈم پیش۔ لے آؤٹ منظور شدہ احباب کالونی رویندر نگر کے ساکنان علاقے میں ڈرینیج کے ناقص انتظامات سے نالا، چیمبر سے ابل رہے پانی سے بن گئی راستوں پر گندے پانی کی جھیل، ساکنان وبائی امراض کے دہانے پر، متعلقہ انتظامیہ کی بے حسی برقرار۔ اور الیکٹریکل وہیکلز اور دیگر گاڑیوں میں آگ لگنے کے واقعات میں ہوا اضافہ۔ اولد آباد شہر میں بھی ایک ٹو ویلر وہیکل ہو گئی شعلہ پوش، آگ لگنے کی وجوہات معمہ، عوام میں بے چینی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مین پائپ لائن اور فیڈر لائن سے لیے گئے غیر قانونی نل کاٹنے کی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ اس کام کے لیے تشکیل دیے گئے اسکواڈ نمبر 3 نے چکل تھانہ میں منی گھاٹی کے سامنے اور اطراف کی بستیوں سے بے شمار غیر قانونی نل کنیکشن منقطع کر دیے۔ میونسپل انتظامیہ کے مطابق شہر بھر میں بے شمار افراد نے پانی کی ٹانکیوں کو پانی فراہم کرنے والی پائپ لائن سے غیر قانونی طریقے سے نل کنیکشن لے رکھے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی ٹانکیاں ہی نہیں بھر پاتی اور شہر کی پانی سپلائی متاثر ہوتی ہے، اور فیڈر لائن پر 24 گھنٹے پانی فراہمی جاری رہتی ہے اور ان غیر قانونی کنیکشن والوں کو 24 گھنٹے پانی ملتا رہتا ہے۔ شہر میں پانی سپلائی سسٹم ناکارہ ہو جانے کے بعد اس سنگین مسئلے کو حل کرنے کے لیے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے مین پائپ لائن اور فیڈر لائن پر سے لیے گئے سبھی غیر قانونی نل کنیکشن توڑنے کے لیے خصوصی مہم شروع کی ہے، لیکن اسٹاف کی کمی کے سبب یہ کارروائی سست روی سے جاری تھی۔ اس مہم میں تیزی لانے کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریٹر ابھیجیت چودھری نے ڈپٹی کمشنر واٹر سپلائی کی رہنمائی میں 3 اسکواڈ تشکیل دیے ہیں، جس کے تحت آج اسکواڈ نمبر 3 میں شامل افسران و ملازمین نے چکل تھانہ علاقے میں منی گھاٹی ہاسپٹل کے سامنے سے گزر رہی 250 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن پر سے لیے گئے زائدہ 66 غیر قانونی نل کنیکشن آج توڑ دیے۔ یہ کارروائی میونسپل کمشنر کی ہدایت پر انجام دی گئی۔ اس اسکواڈ میں ڈپٹی میونسپل کمشنر راہل سوریہ ونشی، واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی انجینئر مہیش چودھری، اسکواڈ انجینئر راہل مالکھیڑے، بھوشن دیورے، جونیئر انجینئر کلیان ساتپوتے، ابھیجیت گاونڈے، منک گورے، ناگری متر پتھک کے چیف پرمود جادھو سمیت واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ کے ملازمین شیخ ستار، ساگر دیگھوڑے، رگھوناتھ پھرکاڑے، اشوک واگمارے اور JCB ڈرائیور سندیپ اوباڑے بھی شامل ہیں۔ بیڑ میں لوک سینا کے صدر الیاس انعامدار اور دیگر عہدیداران تنظیم نے بلقیس بانو عصمت دری کے مجرمین کی رہائی پر مذمت کرتے ہوئے ضلع کلکٹر کو میمورنڈم پیش کیا اور شدید احتجاج کا انتباہ دیا ہے۔ ماضی میں گجرات کے فسادات کے دوران حاملہ خاتون بلقیس بانو کی عصمت ریزی اور اس کے دیگر اہل خانہ میں 3 برس کے بچے سمیت 7 افراد کے قتل عام کے مجرمین جو سزائے عمر قید کاٹ رہے تھے، پچھلے دنوں گجرات سرکار نے مرکز کی مودی سرکار کے اشارے پر ان بے رحم قاتلوں و زانیوں کو رہا کر دیا۔ یہ فیصلہ شرمناک، غیر جمہوری اور غیر انسانی ہے۔ اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لوک سینا کی جانب سے ان مجرموں کی رہائی اور سرکاری فیصلے کی مذمت کی گئی اور ملک کے صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، قومی حقوق انسانی کمیشن، قومی کمیشن برائے خواتین اور ریاستی وزیر اعلیٰ کے نام مذکورہ لوک سینا کے صدر پروفیسر ایڈوکیٹ الیاس انعامدار کی رہنمائی میں ضلع کلکٹر بیڑ کے سپرد کیے گئے۔ میمورنڈم دینے گئے وفد میں تنظیم کے ضلع صدر سفیان منیار اور دیگر کارکنان و عہدیداران شامل تھے۔ بعد ازاں تنظیم کے صدر انعامدار نے انتباہ دیا کہ ان کی تنظیم اس معاملے میں وقت پڑنے پر شدید احتجاج بھی کرے گی۔ देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना
महिला सन्मानासाठी मोठे मोठे गोष्टी आणि बाता त्यांनी मारल्या, परंतु त्याच दिवशी गुजरातच्या दंगलीमध्ये बिल्किस बानो नावाची महिलेचा बलात्कार करून त्याच्या घरच्या लोकांना ठार मारण्यात आले. ह्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना शिक्षा दिली असताना 15 ऑगस्ट रोजी ज्या दिवशी नरेंद्र मोदी यांनी महिला सन्मानाची बाता मारली, त्यांनी गोष्ट मारली, त्याच दिवशी ते 11 आरोपींना गुजरात सरकारने बरी केलेला आहे. हा निर्णय भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संस्कृतीसाठी काळा दिवस होता आणि हा काळा निर्णय आहे. ह्या निर्णयाच्या विरोधात लोकसेना पार्टी आपल्याला आवाहन करत आहात लोकसेना संघटनेतर्फे की ह्या निर्णयाच्या विरोधात 26 तारखेला शुक्रवारी आपल्या घरावरती गाड्यावरती काळे झेंडे लावून हा सरकारच्या विरोधात एक निषेधात आपण आंदोलन करू. तर आम्ही तुम्हाला अपील करतो, आवाहन करतो कि 26 तारखेला शुक्रवारी आपल्या घरावरती काळे झंडे लावून ह्या सरकारच्या आणि ह्या व्यवस्थेचा निषेध करावा. धन्यवाद. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब तक शहर में किए गए सभी तरक्याती कामों की फहरिस्त और तफसीलात आम की जाएं. इस तरह का मुतालबा आम आदमी पार्टी के जिम्मेदारान ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी से किया है. इस ज़िम्न में एक वफ्द गुज़िश्ता शाम म्यूनसिपल कारपोरेशन दफ्तर पहुंचा. इस वफ्द में शामिल अफराद का कहना था कि मुल्क के दीगर शहरों के साथ साथ हमारे शहर का नाम भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, जिसके लिए मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की जानिब से तकरीबन 750 करोड़ रुपयों की माली इमदाद AMC इंतज़ामिया को दी गई और इस प्रोजेक्ट के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया को अपना हिस्सा 250 करोड़ रुपये अदा करना है. साल 2015 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया और गुज़िश्ता 7 सालों में मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत और म्यूनसिपल कारपोरेशन के फंड से मुख्तलिफ काम करवाए गए. इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक शहर में कितने काम करवाए गए, उन पर कितनी रकम खर्च की गई, ये काम कौन सी एजेंसी को अलाट किए गए, इन तमाम तफसीलात पर मबनी वाइट पेपर जारी किया जाए और इसे आम किया जाए. ये मुतालबा आम आदमी पार्टी ने म्यूनसिपल कमिश्नर से किया है. इस ज़िम्न में एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया गया. इस वफ्द में इसहाक अंडेवाला, सतीश संचेती, दत्तू पवार, हनीफ शेख, रूपाली ताई, मजहर खान, जालिंदर ढाकने, सैयद नज़ीर, शेख हबीब और आप पार्टी के दीगर ओहदेदारान वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे. आपण यात काहीतरी विचारलं पाहिजे महानगरपालिकेला. तर मी म्हटलं हो बरोबर आहे साहेब, इसाकभाई म्हटले की विचारलं पाहिजे. तर आज आम्ही त्या अनुषंगाने निवेदन देतोय की साहेब 2015 पासून किती खर्च केला, कुठं खर्च केला, कोण कोण ठेकेदार आहेत आणि याची यादी द्या. यादी म्हणजे आम आदमी पार्टीला नको द्या, तुम्ही लागलं तर प्रसिद्धी पत्रांमध्ये प्रसिद्धी करा. लोकमत सारख्या पेपरला द्या, दिव्य मराठी सारख्या पेपरला द्या आणि जिथं प्रमुख वृत्तपत्र औरंगाबादला आहे तिथं द्या. आणि या अनुषंगाने आज निवेदन देण्यासाठी आम्ही इथं आलो होतो आणि आज इथे साहेब बसलेले मीटिंगमध्ये त्यांनी वेळ दिलेला आहे. आशा करूया की ते आता श्वेतपत्र काढतील. याच्यात निवेदनामध्ये आम्ही श्वेतपत्र काढण्यासाठी निवेदन दिलं आहे, म्हणजे व्हाईट पेपर त्यांनी काढावं की आजपर्यंत किती काम झाले, किती खर्च झाला, जेणेकरून औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रातील जनतेला ते नक्कीच कळेल. धन्यवाद. आपलं नाव? अशीर, जय हिंद. कोरोना का खतरा अभी टला न टला था कि अब स्वाइन फ्लू ने औरंगाबाद वालों की तशवीश बढ़ा दी है. ज़िला भर से इस मर्ज में 12 अफराद मुब्तला हुए हैं, जिनमें से 3 अफराद रूबा सेहत हो गए, जबकि 9 मरीजों के इलाज जारी हैं और मरीजों की तादाद बढ़ने का खदशा माहिरीन सेहत ने जाहिर किया है. इन दिनों बारिश का मौसम जारी है और इसी के साथ साथ मौसमी अमराज भी जारी हैं. ज़िले में सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार के अमराज के बीच ही अब स्वाइन फ्लू ने भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं. यहाँ रहे कि साबिक़ा 3 बरस के दौरानिये में आलमी जानलेवा वबा कोरोना का कहर हमारे मुल्क पर भी टूटा था और अब जबकि ये मर्ज़ काबू में आ गया है, लेकिन अभी भी कोरोना के नए मरीज़ पाए जा रहे हैं. इसी बीच बारिश के मौसमी अमराज के साथ साथ स्वाइन फ्लू के मरीज़ों का भी इजाफा देखा जा रहा है, जिसके सबब सेहत इंतज़ामिया हड़बड़ाहट के साथ बेदार हो चुका है. स्वाइन फ्लू से अब तक 12 मुतासरीन पाए गए हैं, जिनमें शहर औरंगाबाद के ही 7 मरीज़ शामिल हैं, जबकि ताल्लुक़ा औरंगाबाद पैठन में 1 और वैजापुर ताल्लुक़े में 2 लोग स्वाइन फ्लू में मुब्तला हुए. ख़ास बात तो ये भी है कि इन मुतासरा मरीज़ों में 2 डॉक्टरों का भी शुमार है और मज़कूरा डॉक्टर्स होम आइसोलेशन में हैं. शहरियान तमाम ज़रूरी एहतियात, साफ़ सफाई और साफ़ व शफ़ाफ़ और ज़रूरत पड़ने पर उबाल कर पानी पिएं ताकि इन अमराज से बचाव मुमकिन हो सके.
अहबाब कॉलोनी रविंद्रनगर इलाके से गुजर रही ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता कई रोज से बंद है और अब तो लाइन से उबल कर गलीज पानी यहाँ तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इलाके के साकिनान को आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा है। साकिनान, बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन इसी गंदे तालाब से गुजरने पर मजबूर हैं। नाजरीन, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये बारिश के जमाशुदा पानी की नहीं हैं, बल्कि ये ड्रेनेज के चैम्बर से उबलने वाले पानी की हैं, जिसने अहबाब कॉलोनी रविंद्रनगर इलाके में झील जैसी शक्ल इख्तियार कर ली है। अहम बात तो यह है कि ये कॉलोनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से लेआउट मंजूर शुदा कॉलोनी है और यहाँ के साकिनान ने तामीर के लिए बाज़ाब्ता मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से बिल्डिंग परमिशंस हासिल करने के बाद अपने मकानात बनाए हैं और बेटरमेंट चार्जेस के साथ साथ डेवलपमेंट फ़ीस भी एएमसी इंतज़ामिया को अदा की है। इसके बावजूद मुताल्लिक़ा अफसरान से बार बार शिकायत करने के बाद भी इस मसले को हल करने कोई तैयार नहीं है, जिससे साकिनान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से इस जानिब खुसूसी तवज्जो देने का मुतालबा कर रहे हैं। ये मैं अहबाब कॉलोनी से बोल रहा हूँ नईम खान। यहाँ पर जो ये पानी देख रहे हैं आप, ये नमाज के लोग जो आने जाने वाले हैं उनके लिए परेशानी है। आम राहदारी, ये आम राहदारी भी नहीं है बल्कि ये मोहल्ले की ही जाने आने का एक मेन रास्ता है और यही पूरा ब्लॉक हो गया। अभी देखिए इतनी परेशानी है यहाँ पर कि कोई भी जा नहीं सकता। अभी कैसा जाएंगे, ये ड्रेनेज का पानी है। ये आप प्लीज़ थोड़ा इस तरफ ख्याल कीजिए। हाँ, ये हमारी अहबाब कॉलोनी है रविंद्र नगर में। ये कॉलोनी में ड्रेनेज का मसला 10 सालों से चल रहा है। हर बार हम कॉरपोरेशन को बताया है, कंप्लेन किए हैं, मगर इसका कुछ हल कॉरपोरेशन नहीं निकालती है। अब देखिए पानी इतना खड़ा हो जाता है, ये सब ड्रेनेज का पानी है। इसके लिए हम कंटिन्यू अभी 4-5 दिन से कॉरपोरेशन के पास जा रहे हैं, मगर कोई आदमी को भेजते नहीं, ना इसका मसले का हल करते हैं। हमारे नमाज को जाने के लिए, जो है मस्जिद जाने के लिए जो है यहाँ रास्ता नहीं है। बच्चे कैसे जो है जाएंगे पानी में से, बच्चों का खेलने का भी मसला है। इसको जो है सो कॉरपोरेशन ने देखना चाहिए और हमारी जो कंप्लेन है इसको कॉरपोरेशन निपटारा करना चाहिए। इसलिए हम आपसे जो है सो इल्तिजा करते हैं। जिले में ज़ाती इमारत से महरूम ग्राम पंचायतों को खुद की दफ्तरी इमारत फराहम कराने के लिए ज़िला परिषद ने इक़दामात शुरू कर दिए हैं और जल्द ही ज़िला भर में 130 ग्राम पंचायतों को ज़ाती इमारत फराहम होंगी। आया रहे कि ज़िला औरंगाबाद में मजमूई तौर पर 866 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से तकरीबन 130 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिन्हें अपनी ज़ाती दफ्तरी इमारत नहीं हैं। इसी के पेश नज़र इन पंचायतों को ज़ाती इमारतों की फराहमी के लिए ज़िला परिषद के CEO नीलेश गटने ने कोशिश शुरू कर दी है। दफ्तरी इमारत के साथ साथ उनकी मिल्कियतों को कंपाउंड, बाजारोटे, ज़रई गोदाम, बचत गटों और शमशान भूमियों को शेड के काम भी किए जाएंगे और इन तमाम कामों के तखमीने के लिए निधि का इंतज़ाम कर लिया गया है। 15वें मालियाती कमीशन के फंड से 10% पंचायत समिति से और ग्राम पंचायत के फंड और मनरेगा के मुजवज़ा फंड को मुश्तरक करके इस काम के लिए फंड पैदा किया जाएगा। इन कामों के लिए पहले ही से मिलने वाला फंड इंतहाई नाकाफ़ी होने के सबब डिवीज़नल कमिश्नर ने ये तरकीब पेश की थी। इसी तरह मनरेगा की तजावीज़ में भी 262 काम अंजाम देने की सिफारिश मौजूद है, इसलिए इस फंड से ये काम लिए जाएंगे। मज़कूरा ग्राम पंचायतों की इमारत में निचले मंजिलों पर दुकानों के गाले तामीर किए जाएंगे, जिनके किराए पर दिए जाने से ग्राम पंचायतों की मालिया मजबूत होगी। ज़िला परिषद CEO नीलेश गटने ने कहा है कि मज़कूरा कामों के लिए आइंदा 3-4 माह में वर्क ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे और इन कामों के लिए सर्कल सतह पर अफसरान के तकर्रुर भी किए जाएंगे। रात के अंधेरे में जंगली जानवरों के झुंड खेतों में दाखिल होकर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लिहाजा उनका बंदोबस्त किया जाए और मुतासरा किसानों को नुकसान भरपाई अदा की जाए। ये मुतालबा वालूज MIDC के मज़ाफ़ात जोगेश्वरी के किसान कर रहे हैं। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जोगेश्वरी के गट नंबर 4 में ईसाराम, पंडरीनाथ, दोबैले और दीगर किसानों के खेत हैं, जिसमें उन लोगों ने मकई की बोयाई की थी। सख्त मेहनत और मशक्क़त के बाद फसलें लहलाने लगी हैं, मगर
जंगली सूअर, जंगली गायें और हिरन झुंड की शक्ल में यहाँ आकर उनकी खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फसलों को जंगली जानवरों के कहर से बचाने के लिए किसानों को रात रात जागकर पहरा देना पड़ रहा है, मगर जंगली जानवरों के झुंड उन पर भी हमला आवर होने लगे हैं, जिसकी वजह से उनकी जान को भी खतरा लाहक है। लिहाजा इन जंगली जानवरों का इंतज़ाम किया जाए और किसानों के हुए नुकसानात की भरपाई की जाए। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज का उन लोगों ने इंतबाह दिया है। इत्तला पाते ही एग्रीकल्चर असिस्टेंट मनीषा भालेराव वहां पहुंची और फसलों को पहुंचे नुकसानात के पंचनामे किए। इस मौके पर भास्कर दुबेले, साबिक सरपंच प्रकाश साबड़े, कारभारी करडीले, काका साहब दुबेले, पुलिस पाटिल काशीनाथ भावले, संदीप दुबेले और रघुनाथ काकड़े वो दीगर मौजूद थे। मी मनीषा भालेराव, कृषी सहाय्यक, गंगापूर जोगेश्वरी येथे मक्याची पाहणी करण्यासाठी आलेली आहे। तर इथे मोकाट जनावरांमुळे मक्याचं फार मोठं नुकसान झालेलं आहे। तर मी याचा पंचनामा करून अहवाल आमच्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करत आहे। मी भास्कर दुबिले एक शेतकरी आहे जोगेश्वरी येथील। माझ्या या गावामध्ये अनेक शेतकऱ्यांची या रानडुकराने आणि डुकराने अतोनात नुकसान केलेले आहे। तरी शासनाने याकडे लक्ष देऊन या शेतकऱ्यांची भरपाई करून देण्यात यावी, नसता आंदोलन करण्यात येईल, उपोषणाला बसण्यात येईल जर शासनानं यावर दुर्लक्ष केलं तर। मी साराम दुबिले जोगेश्वरी, मी इथं गट नंबर 4 ह्या शेतामध्ये भरपूर डुकरांनी नुकसान केलेलं आहे। तरी शासनानं आम्हाला ताबडतोब याची नुकसान भरपाई देण्यात यावी, नाहीतर आम्ही उपोषणाला बसणार आहे, याची दक्षता घ्यावी। IDFC फर्स्ट भारत की जानिब से मिसरवाड़ी इलाके में अमराज़े चश्म का एक जांच कैंप मुनक़िद किया गया। ये कैंप आज तारीख 24 अगस्त को अवामी इफादियत के तहत मिसरवाड़ी जैसे पसमानदा व गरीब आबादी के इलाके में मुनक़िद किया गया। कैंप में आए तमाम मरीज़ों की आँखों और आँखों के अमराज की जांच व तशख़ीस मुफ्त की गई, जबकि इंतहाई कलील कीमत पर चश्मे भी दिए गए। इसी तरह मोतियाबिंद के मुफ्त ऑपरेशन की सहूलत दी गई। इस कैंप से मिसरवाड़ी व आसपास के ज़रूरतमंद बच्चे, बड़ों और मर्दों ख़वातीन ने इस्तेफ़ादा किया और कमोबेश 230 अफराद की जांच व इलाज किए गए। कैंप के मौके पर मुनक़िद तकरीब में CSR रीजनल मैनेजर महाराष्ट्र IDFC भारत शरद देवीदास देड़े, औरंगाबाद डिविजनल के शोभनाथ मुजगुड़े, ब्रांच ऑफिसर सिडको अनिल डम्बेघर और उनके मावनीन योगेश पाटिल व ब्रांच के तमाम मुलाजिमीन मौजूद थे। जबकि कैंप में जिन डॉक्टरों व माहिरीन ने अपनी खिदमात दी उनमें डॉक्टर योगेश बादले और उनके माविन केतन पवार शामिल थे। क्रिश्चियन महासंघ की जानिब से ख्रिस्ती प्रार्थना हक आंदोलन किया गया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सिपुर्द किया गया। मज़ाहिरीन का कहना है कि औरंगाबाद शहर में क्रिश्चियन बाबा के भोंदूपन से मुताल्लिक़ एक मामला उजागर करके भोंदू बाबा बाबा साहब शिंदे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ने लगा था, जिसकी मजम्मत में क्रिश्चियन महासंघ की जानिब से आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया। उन लोगों का कहना है कि औरंगाबाद के पारुंडी नामी मकाम पर जारी एक प्रार्थना सभा पर इस तरह के झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए, जिसकी वजह से रियासत भर के क्रिश्चियन समाज के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। क्रिश्चियन महासंघ के जिम्मेदारान का कहना है कि इस मजहबी प्रोग्राम में अंधी तकलीद, कानून की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है, लिहाजा इस प्रोग्राम को चलने दिया जाए। इस ज़मन में मजीद मालूमात क्रिश्चियन महासंघ के रियासती सदर आशीष शिंदे ने दी है। हे करत असताना आम्ही सरकारला फक्त या आंदोलनाद्वारे एवढी जागृती देऊ शकतो की प्रार्थना करत असताना आम्ही आमच्या प्रार्थना करणार, कोणत्या धर्माचा असू द्या, हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, ईसाई, प्रत्येक जणाला प्रार्थनेचा अधिकार दिलेला आहे आणि त्या अधिकाराच्या अधीन राहून आम्ही प्रार्थना करत आहोत। आमच्या कोणत्याही प्रार्थना सभेवर कोणीही विनाकारण त्रास देता कामा नये, कारण हा जर त्रास होत असेल तर येणाऱ्या दिवसामध्ये हिंदू लोकांनाही प्रार्थना करणं अवघड जाईल, मुस्लिम लोकांनाही प्रार्थना करणं अवघड जाईल, शीख लोकांनाही प्रार्थना करणं अवघड जाईल। कारण घटनेने आम्ही सर्व भारतीय आहेत। मी आशिष शिंदे, मी या भारतामधला एक नागरिक आहे। आम्ही सर्व भारतामधले नागरिक असताना सुद्धा या ठिकाणचा असा त्रास होत असेल तर मला वाटतं याच्यापेक्षा मोठं दुर्दैव या महाराष्ट्रासारख्या अतिशय पुरातन अशा राज्यामध्ये नाही। आणि चर्चा केली जाते ख्रिश्चन लोकांविषयी ज्यांनी एवढं मोठं काम केलं, वाईट वाटतं आणि त्यामुळे आम्ही फक्त सरकारला जागं करण्यासाठी आंदोलन करतोय। जर समजा याच्यामधून आम्हाला जर निदर्शनास नाही आलं की सरकार आमच्या बाजूने उभा आहे तर एक दिवशी नक्कीच एक मोठं आंदोलन, सर्व राज्यस्तरीय आंदोलन आझाद मैदान या ठिकाणी करण्यात येईल। हक्काचं, आमच्या अधिकाराचं कुठल्याही प्रकारचं हनन होऊ नये
यासाठी आज आम्ही सर्व समाज बांधव या ठिकाणी बसलेलो आहोत। जर आम्हाला वेळीच योग्य न्याय दिला नाही तर जसं आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आशिष शिंदे साहेबांनी सांगितलं, राज्यभर याचे पडसाद उमटतील आणि शांतिप्रिय ख्रिस्त समाज परत एकदा शांतिप्रिय रीतीनेच आमचा जो प्रार्थना करण्याचा अधिकार आहे त्या अधिकाराच्या बाबतीत राज्यभर आंदोलन करेल। समयक विद्यार्थी आंदोलन नामी तंजीम की जानिब से मुख्तलिफ मतालबात को लेकर यूनिवर्सिटी अहाते में जोरदार मुजाहरा किया गया और एक मेमोरेंडम यूनिवर्सिटी इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। ये एहतजाज तंजीम के चीफ सेक्रेटरी प्रकाश एंगड़े की रहनुमाई में किया गया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि प्रोग्रेस रिपोर्ट फीस 1700 रुपये की जाए, पीएचडी की ट्यूशन फीस कम की जाए, कमाओ और सीखो स्कीम के तहत तलबा को 4000 रुपये मानधन दिया जाए, एमटेक डिपार्टमेंट से पीएचडी दाखिलों की जिम्मेदारी हटाकर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को दे दी जाए। इसी तरह के दीगर मुतालिबात पर यह एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन में प्रोफेसर प्रकाश एंगड़े के अलावा रामेश्वर कबाड़े, संगीत कामड़े, ऋषिकेश कामले, रोहित जोगदंड, अमरदीप वानखेड़े, भास्कर निकालजे और दीगर शामिल थे। आज दिनांक 24 ऑगस्ट 2022 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या वतीने भव्य दिव्य स्वरूपाचे असे आंदोलन केले। पीएचडीच्या संदर्भात विद्यार्थ्याच्या विविध समस्या घेऊन आम्ही आज आंदोलन केलेलं आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रशासकीय इमारतीसमोर। पहिला मुद्दा होता की प्रोग्रेस रिपोर्टची फीज ही 1700 रुपये झाली पाहिजे। दुसरा मुद्दा असा होता की पीएचडीची जे ट्यूशन फीज आहे ते कमी करण्यात यावी। तिसरा मुद्दा होता कमाशिका योजनेचे 4000 रुपये पर मंथ मानधन देण्यात यावे। चौथा मुद्दा असा होता की जनसंवाद व वृत्तपत्र विभाग या विद्यार्थी अमरदीप वानखेडे यांच्या 3ऱ्या नंबरवर मेरिटवर नाव असताना सुद्धा त्यांना गाईड नसल्यामुळे त्यांना ते वंचित राहिलेले आहेत, त्यांचं पण त्यांना गृहीत धरण्यात यावं। पाचवा असा मुद्दा होता की रीडिंग हॉलपाशी भोजनासाठी असा भोजन कक्ष, स्वतंत्र मोठा असा भोजन कक्ष बनवण्यात यावा। सातवा मुद्दा असा होता रीडिंगमध्ये जे स्वच्छ पाणी नाही आहे त्याचं ॲरोचं काम करून किंवा स्वतंत्र दुसरा चांगला ॲरो बसून त्यांना स्वच्छ पाणी पिण्यासाठी भेटावं। आणि जो आखरी मुद्दा होता तो असा होता की पेट 2022 ही तात्काळ घेण्यात यावी। इतर जे राहिलेले प्रकरणं आहेत या पेटचे ते प्रकरण मार्गी लावून नवीन पेट घेण्यात यावी असे वेगवेगळे मुद्दे घेऊन आम्ही कुलगुरू महोदयांकडे गेलो होतो। कुलगुरू महोदयांनी पण त्यातला पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला आणि त्यांनी सांगितलं की या 4 ते 5 दिवस किंवा या हप्त्यामध्ये हे प्रकरण सर्व मार्गी लावून नवीन पेटची घोषणा करू म्हणून। पालम जिला परभनी कानूनी खिदमात व वकील संघ और पालम पुलिस थाना के इश्तराक से मोटर व्हीकल कवानीन से मुताल्लिक रहनुमाई कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप के ज़रिए यहाँ ममता स्कूल के तलबा की रहनुमाई करते हुए उनमें एहसास ज़िम्मेदारी के फ़रोग़ और मोटर व्हीकल कवानीन से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की गई। इसी तरह सड़क हादसात में हो रहे रोज़ अफ़ज़ू इजाफ़े और उसके असबाब से भी आम लोगों में बेदारी पैदा करने और हादसात की रोकथाम के लिए कानूनी बेदारी व एहतियात के उसूल समझाए गए। इस कैंप में ममता स्कूल के कमोबेश 1500 तलबा मौजूद थे। इस तरह इस कैंप से ऐसा गुमान हो रहा था जैसे पुलिस थाना ही में स्कूल शुरू हो गया हो। इस प्रोग्राम की सदारत पालम की अदालत की जज वीडी शिरसे ने की, जबकि पालम पुलिस थाना के इंस्पेक्टर प्रदीप काकड़े, हाईवे पुलिस की माविन इंस्पेक्टर अर्चना वरकुड़े, मोटर व्हीकल के माविन इंस्पेक्टर विकास नायकवाड़ी, प्रशांत मोरे और वकील संघ के एडवोकेट बीबी दुधाटे, पीबी मुटाड़, एडवोकेट खतीब, ममता स्कूल के सदर मुदर्रिस शिवाजीराव अंभुरे और असातिज़ा कराम इस प्रोग्राम के मेहमानान खुसूसी थे। इंस्पेक्टर प्रदीप काकड़े ने अपनी रहनुमाई में वजाहत की कि इन दिनों तलबा व नौजवान अदम एहतियात के साथ तेज़ रफ्तारी से गाड़ियाँ चलाते हैं, जो कतई नामुनासिब, ख़तरनाक और जानलेवा साबित होने वाली हरकत है। उन्होंने ट्रैफिक और मोटर व्हीकल कवानीन से मुताल्लिक़ मौसर रहनुमाई की। इसी तरह दीगर मुक़र्रिरीन और सदर इजलास ने भी अपनी तकारीर के ज़रिए कवानीन का एहसास व पासदारी और महफूज सफ़र के उसूल कवानीन और कानून शिकनी के नताइज और सज़ा व जुर्मानों से भी तलबा व शुरका को आगाह व बेदार किया। तरीसुद्धा नियमात गाडी चालवत असताना देखील आपण जसं वकील साहेबांनी सांगितले कट मारणे असे प्रकार करतो किंवा मोबाईलवर जाता जाता बोलतो। परवा जो त्यांनी ॲक्सिडेंट सांगितला, एका ट्रॉलीला 2 लोक धडकली,
त्यातला एक मयत आहे, एक मरणाच्या दाढेत आहे. त्याच्यानंतर दुसरा एक तिथंच अपघात झाला, पण तो ट्रॉलीला नाही, केवळ आणि केवळ ट्रॉलीला रेडियम न लावल्यामुळं, ट्रॉली उभी आहे हे न दिसल्यामुळं दोन्ही ॲक्सिडेंट झालेले आहेत. कायदा हा समाजाचा कणा आहे आणि जोपर्यंत हा कणा ताट राहील ना तोपर्यंत समाजामध्ये अगदी सुव्यवस्था राहील. म्हणजेच कायदा म्हणजे नियम. कायदा म्हणजेच काय, तुमच्यासाठी बनवलेले तुम्हाला कठोरही वाटतील परंतु ते तुमच्यासाठीच बनवलेले आहेत. आपले कायदे हे जुने आहेत. ताल्लुका खुलदाबाद में एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ी अचानक शोलापोश हो गई और देखते ही देखते गाड़ी जलकर खाकिस्तर हो गई. माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से हुकूमत व इंतज़ामिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं और बाज़ार में इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कारें और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त बड़े पैमाने पर जारी है. मगर इन गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात भी रोनुमा होने लगे हैं. आज भी खुलदाबाद शहर में अचानक एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ी से शोले बुलंद होने लगे. अतराफ़ के साकिनान और राहगीरों ने जब ये माजरा देखा तो वो फौरी तौर पर आग बुझाने लगे, मगर जूं आग बुझाने की कोशिश की जाती शोले और भड़कने लगते और देखते ही देखते ये गाड़ी जलकर खाकिस्तर हो गई. इस व्हीकल को आग क्यों कर लगी, इसकी वजह अब तक मुअम्मा ही बनी हुई है. मगर इस तरह गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात रूनुमा होने से आवाम में बेचैनी बढ़ती जा रही है. नासिक के एक शराब कारखाने से लाई गई 20 लाख रुपये मालियत की अंग्रेजी शराब का जखीरा मालबरदार कंटेनर के ड्राइवर ने गायब कर दिया. मुलजिम के खिलाफ जवाहर नगर पुलिस थाना में केस दर्ज कर लिया गया है. वालूज इलाके की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को नासिक के दिंडोरी सनाती इलाके की एक कंपनी से मालबरदारी करके इस गैर मुल्की शराब के 400 बॉक्स औरंगाबाद के करोड़ी की एक कंपनी तक पहुंचाने के लिए दिए गए थे और इस मालबरदारी के लिए कंटेनर ड्राइवर इमरान शेख के कंटेनर पर बाज़ाब्ता तौर पर आबकारी टैक्स शोबे के इजाज़तनामे के साथ ये शराब का ज़ख़ीरा दिया गया था. इमरान को अपनी मंजिल की जानिब निकले हुए 2 रोज़ बीत गए, ताहम वो शराब का ये माल लेकर औरंगाबाद न पहुंचा तो ट्रांसपोर्ट मैनेजर मनोज कुमार महावीर सिंह को शुबा हुआ और उन्होंने इमरान से रब्ता किया तो उसका मोबाइल फ़ोन बंद पाया गया. इस तरह ये बात साफ़ हो गई कि इमरान इस अंग्रेज़ी शराब के ज़ख़ीरे समेत गायब हो गया है और उसने धोखाबाजी करके माल हड़प कर लिया है. मनोज कुमार की शिकायत पर इस मामले में जवाहर नगर पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. नाजरीन, खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर से लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन मुनक़ता करने की मुहिम शहर में जारी. चिकल थाना इलाके में आज की गई कार्रवाई और तोड़े गए 66 कनेक्शन. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब तक किए गए तरक्याती कामों का एएमसी इंतजामिया करे व्हाइट पेपर जारी. आम आदमी पार्टी का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुतालिबा, मेमोरेंडम पेश. लेआउट मंजूर शुदा अहबाब कॉलोनी रविंद्र नगर के साकिनान इलाके में ड्रेनेज के नाक़िस इंतजामात से नाला, चैम्बर से उबल रहे पानी से बन गई रास्तों पर गंदे पानी की झील. साकिनान वबाई अमराज के दहाने पर मुतालिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार. और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और दीगर गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात में हुआ इजाफा. खुलदाबाद शहर में भी एक टू व्हीलर व्हीकल हो गई शोलापोश. आग लगने की वजूहात मुअम्मा, आवाम में बेचैनी. इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है. मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.